Uh, so we are continuing with our anthropology series. Today we are going to see about paper 2 as we are going to start the paper 2. So today we will see the topic number second, third and fourth of paper 2. So topic number second, as you say, the demographic profile of India. अभी इसमें सी आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन द टॉपिक नेम्स. नाउ इफ you see, they ask generally two questions on this. One, they ask generally 15 marker, and another they ask a 10 marker on this topic. So generally, if you can see, the 15 marker is mostly, it is either related to this ethnic element or it is related to this population policy or something. So ethnic element, now India's population जो है इथनिकली जो डिवाइड किया गया है, देर आर मेजरली टू divisions of Indian population has been done. One is by Riesle. So Riesle's classification was on the basis of this anthropometric measures. Approximately 5000 people का anthropometric measurement किया था. So he divided the population in the 7 types, like Indo-Aryan, Aryo-Dravidian, Dravidian, Scytho-Dravidian, Mongolo-Dravidian, right? Mongolite. So Riesle divided Indian population in the 7 types, right? So this you can cover from Braintree. ये वाला पार्ट आप Braintree से कवर कर सकते हो. But on internet, see, paper 2 के लिए one important thing which you are going to search always is internet. Internet is going to be very very much helpful, and other thing is going to helpful is your anthropology books of इग्नू. इग्नू का जो मटेरियल है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. इग्नू का मटेरियल भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस चीज़ में, ठीक है. सो रिजले का क्लासिफिकेशन, बट रिजले का क्लासिफिकेशन जो है, देयर आर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म गिवन बाय मैक्स मुलर और मेनी अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स. They have given, whether it is Hutton and other people, they have given a lot of criticism of this Riesle's classification. So they can ask you critically analyze the classification given by Riesle. Okay, so this is again must. The second classification is given by Guha. Okay, so Guha has given the second classification. He divided the Indian population in 6 different types. It's like Negrito, Proto-Australide, Mongolide, then Mediterranean population, that is Dravidian population, right? Then Eastern Brachycephals, right? And then Nordics. So he divided in the 6 different types, right? And there are multiple other subdivisions also. Again, in Guha's, so Guha's classification is considered as one of the accurate classification of Indian population. It is most accepted one, right? And there are also some criticism related to Guha's classification also. This also you will find in Braintree. इसके अच्छे चार्ट बना लेना, because it is very important to recall their features also. Okay, and इसका जो है, you should represent this in the India's map. इंडिया के मैप में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, and that I will forward this map. जो कीर्ति चेकुरी मैम का डायग्राम्स है ना, कीर्ति चेकुरी मैम के डायग्राम्स है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाले जो डायग्राम्स है, सो दोज डायग्राम्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल in, because it like if you have very less time, you can show that in the form of map also. Okay, then the next question which has been asked multiple times in past years is Negrito problem in Indian population. Negrito problem in Indian population. Now Guha in his classification, okay, Guha, so इसका major proponents थे Guha and Hutton, J.H. Hutton. So they said that there is some Negrito element in Indian population characterized by dark skin, black eyes, short stature, right? उनका ये मानना था, ये है. So this again you will find in Braintree. Braintree में इसका अच्छा content दिया है, और you can just search this in Google also. सो वो बोलते हैं कि जो इरुला ट्राइब है नीलगिरी हिल्स में, और इन द अंडमान निकोबार ऑल्सो दिस ओनजेस एंड अदर ट्राइब्स, दे आर बेसिकली नेग्रिटोस एज सेड बाय J.H. Hutton. फिर देर इज दिस क्वार्टरफेजेस ऑल्सो, एंड देन गुहा स्टडीड दिस कादर्स, इरुला, पानियन. According to Guha, they have this frizzly hair, which is one of the characteristics of the Negritos, right? So according to Guha,
they are classified in Negrito. But there were others such as Majumdar and then Fisher and Goa. Many other people criticized this Negrito element in Indian population. Okay, so this is also a 10 marker can be asked. You can cover that through Braintree. Okay, moving forward, linguistic elements in Indian population. Linguistic elements in Indian population. इसमें जो है they have the again they can ask you either Indo-European languages, Indo-European family. इसका एक स्ट्रक्चर बनता है राइट अभी जैसे अगर इंडो यूरोपियन पूछा सो यू इंट्रोड्यूस कि इंडो यूरोपियन क्या है सो यू राइट द टाइप्स कि इंडो यूरोपियन में टाइप्स क्या है ईरानियन ब्रांच है द्राडिक ब्रांच है इंडो आर्यन ब्रांच है राइट इंडो आर्यन ब्रांच में फिर क्या क्या आता है देन यू ड्रॉ मैप रफ मैप इंडिया के मैप में दिखाइए कि भाई ये लैंग्वेजेस कहाँ है देन यू राइट द फीचर्स इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के फीचर्स क्या है इंडो यूरोपियन के फीचर्स क्या है फिर ये बोलिए कि कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई इसमें हाँ ये बहुत सारे वेदास लिखे गए इसमें इसको कल्चरल ये है संस्कृत बहुत ज़्यादा बेस है ये है वो है इफ़ देर इज़ अ थ्रेट टू एनी ऑफ दिस लैंग्वेज यू राइट अबाउट द थ्रेट ओके सो ये सब चीज़ें 10 मार्क के लिए इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है सो सेम गोज़ फॉर द्रविडियन सेम गोज़ फॉर your Sino Tibetan group. Okay, these 3-4 questions they have UPSC has asked this question in before. That's why I'm telling you to prepare a 10 marker on this. The next topic in this is Indian population factors influencing its structure and growth. अभी क्या है आपको ये देखना है कि इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी क्यों है इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी क्यों नाउ यू कैन लिंक पेपर 1 एंड पेपर 2 ईयर टॉपिक नंबर 11 जो है आपका टॉपिक नंबर 11 इन पेपर 1 में जो टॉपिक नंबर 11 है विच वी सॉ इन पार्ट नंबर 11 आप देखेंगे तो उसमें है तो टॉपिक नंबर 11 जो है उसमें जो भी रीजंस और फर्टिलिटी डिफरेंशियल्स जो है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी क्यों है या इंडिया का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जैसा भी है सो दैट इज़ देयर इन द टॉपिक नंबर 11 राइट अभी पॉपुलेशन है सो व्हाट इज़ इट्स स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट्स ग्रोथ अभी जो स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है इससे आप इस पे क्वेश्चन आएगा वन इज योर डेमोग्राफिक पोटेंशियल that is demographic dividend now this question was asked by UPSC some years back okay there is another question that is related to child sex ratio so these two I would say you prepare 15 marker related to this these questions can be asked by UPSC ठीक है ये वाले questions ज़रूर आप prepare कर लीजिएगा देन इसका जो ये है ब्रेंट्री में जो दिया है ब्रेंट्री हैज़ डिस्क्राइब्ड हाउ इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी ओवर द पीरियड 1952 से लेके नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 तक कैसे ग्रोथ हुई है बिकॉज यू नो पॉपुलेशन हैज़ बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम नाउ द लाइक इंडिया हैज़ नाउ एट द टॉप हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड रिलेटेड टू दिस ठीक है तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है ओके सो एंड ब्रेंट्री में एक बहुत दिया है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन पॉपुलेशन कंट्रोल एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है अगर इफ़ इट हैज़ बीन इन्वॉल्व प्रॉपर्ली एंथ्रोपोलॉजी हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे कि भाई जॉइंट फैमिली है तो बढ़ेगा पॉपुलेशन नाउ द विलेज स्टडीज लाइक SC दुबे एंड ऑल दोज विलेज स्टडीज इट हैज शोन दैट जॉइंट फैमिली है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी सो यू नीड टू फाइंड आउट दिस केस स्टडीज ऑल्सो अगर पेपर 2 का जितना भी आप देखेंगे ना पेपर 2 इज मोर अबाउट लिंकिंग मल्टीपल topics giving more case studies writing more anthropologists that will help you fetch more marks in paper 2 many people cannot score very good marks in paper 2 just because of this because they don't know how to interlink these topics the more you interlink topics the better marks you get so ये आप ब्रेंट्री में देख लेना कि what is the contribution of anthropology in population control this is very very important okay
सो हियर कम्स योर पॉपुलेशन, मतलब टॉपिक नंबर 2 यहाँ पे आपका जो है ख़त्म होता है. द मोमेंट वी मूव टू द टॉपिक नंबर 3.1, टॉपिक नंबर 3.1 उसमें क्या है, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम. जब भी ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम अगर बोलते हैं, सो यू हैव टू राइट अबाउट दीज ओनली. ओके, एंड इसमें 2 चीज़ें और ऐड हो जाएगी, दैट इज़ वर्ना एंड कास्ट. एंड यू कैन राइट अबाउट जॉइंट फैमिली. ठीक है. सो ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम में वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, कर्मा, रीना, रीबर्थ, बिलीफ इन दिस, वर्ना, कास्ट एंड जॉइंट फैमिली, all these things are included. I would say you must read Nadeem Hasnain. नदीम हसनैन का जो बुक है, ओके, इससे रिलेटेड जिसमें ये वाला पोर्शन दिया है, सो यू मस्ट रीड. यू जस्ट रीड इट लाइक अ स्टोरी. रीड इट लाइक अ स्टोरी. यू विल डेवलप अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज कास्ट सिस्टम, है ना. तो बहुत लोग तो अलग अलग बुक सजेस्ट करते हैं, बट आई वोंट सजेस्ट मल्टीपल बुक्स फॉर दिस. आप एक बार वो पढ़ लेना, राइट, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू. ओके. सो जैसे इसमें क्या है, जैसे वर्णाश्रम है, अभी ऑल दीज थिंग्स ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये सब आपका कवर हो जाएगा नदीम हसनैन से. बस उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में कैसे लाना है ये आप देख लेना एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड से. एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड से देखना कि इसको स्ट्रक्चर में कैसे लाया जा सकता है. बट you should develop a proper understanding by reading to this because they are asking googly question on this. इस पे वो लोग googly question पूछ रहे हैं, right? Another thing I would suggest कि ये एक बार आप इग्नू में भी देख लेना. ये इग्नू में देखने से क्या मिलेगा आपको, एक एडिशनल थिंकर्स मिलेंगे. If question on any one of is asked, you should link all these concepts. अगर वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम में क्या बोलता है कि ब्रह्मचर्य है, गृहस्था है, वानप्रस्था है, संन्यास है. इसमें पुरुषार्थ है भाई, क्यों नहीं है पुरुषार्थ. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आप कर रहे, ये सब कर रहे, गृहस्था में कर रहे. फिर कर्मा कर रहे, कर्मा का रूल है, राइट. इफ कर्मा में मतलब आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो देन समथिंग इज़ नॉट अलाउड टू यू. देन रीना, रीबर्थ, रीना, सो यू अगेन सारे रीना आप इसमें गृहस्थाश्रम में उसमें ये करेंगे, रिपे करेंगे. अगर आप रीना रिपे नहीं करेंगे तो आपका रीबर्थ हो जाएगा, राइट. सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड एंड वेन एवर इफ क्वेश्चन ऑन वन इज आस्क्ड यू लिंक ऑल दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपरली. देन यू राइट. अब पुरुषार्थ पे क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क का क्वेश्चन ऑन आस्क कैन बी आस्क्ड ऑन एनी ऑफ दिस. ओके. सो पुरुषार्थ जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो आपको है ना इंटरलिंक करते आना चाहिए कि भाई धर्मा, देन व्हाट डिड पीवी काने से, पीवी काने ने क्या बोला, फिर धर्मा ये है, ठीक है, धर्मा ये है, लेकिन धर्म अर्थ कैसा है. अर्थ इज अर्निंग द मनी बाय फॉलोइंग द धर्मा. अर्निंग द मनी बाय फॉलोइंग, सी धर्मा इज ऑलवेज द बेस. धर्मा इज ऑलवेज द बेस. अगर आप काम की बात करते, काम इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट फिजिकल डिजायर्स. काम इज ऑल्सो अचीविंग समथिंग इन लाइफ. सो काम इज अचीविंग समथिंग इन लाइफ अगेन बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्मा. एंड मोक्षा इज इफ यू अर्न अर्थ by following the path of dharma, and if you indulge in kama by following the path of dharma, you will attain moksha. ऐसी थोड़ा सा मतलब उनको you need to impress people, right? then रीना क्या है, तो रीना कौन से है, ठीक है, देव रीना है, ऋषि रीना है, पितृ रीना है, अतिथि रीना है. तो आप बढ़िया एक कॉलम बनाइए, बोलिए कि रीना, ओके दीज आर 4 रीनाज, 1 2 3 4, ठीक है. व्हाट डू यू मीन, व्हाट, ये रीना क्या है, ठीक है. देव रीना क्या है, मतलब देव मतलब भगवान का ऋण कैसे फेड करना है, ये करना है, रिपे करना है. ऋषि, देन रिपे कैसे करेंगे, इसको रिपे कैसे करेंगे. जैसे पितृ ऋण है, पितृ ऋण मतलब क्या है, व्हाट इज़ द रीना टूवर्ड्स योर पितृ, ठीक है, पितृ का ऋण ये है, ठीक है, तो उसको रिपे कैसे करेंगे, दिस इज हाउ यू विल रिपे. ओके. Then comes the most important topic of paper 2 Indian anthropology is caste system. You need to understand caste in a very very detailed manner. बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा.
सो दैट यू कैन लाइक जो भी इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का पूरा पोर्शन ही कास्ट सिस्टम पे डिपेंड करता है. आई वुड से यू शुड मस्ट गो थ्रू इग्नू. यू मस्ट रीड नदीम हसनैन. दिस आर नॉन सब्सटीट्यूट्स. ये दोनों चीज़ें पढ़ना आप कास्ट को समझने के लिए. ठीक है. तो कास्ट का क्या बोलता है, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है. द मोमेंट जैसे कैरेक्टरिस्टिक कास्ट की एक डेफिनेशन अच्छी जो एम एन श्रीनिवास ने दी है, वो डेफिनेशन याद कर लेना. वो डेफिनेशन याद कर लेना कि एम एन श्रीनिवास क्या बोलता है. ओके. सो यू जस्ट सी कि एम एन श्रीनिवास की डेफिनेशन क्या है, एंड देन यू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स की जी एस घुरे ने क्या 6 कैरेक्टर्स दी है. ठीक है. ये जी एस घुरे क्या बोलता है कि भाई कन्नुबिलिटी है, मतलब देर शुड नॉट बी मैरिज बिटवीन द इंटरकास्ट, मैरिज नहीं होनी चाहिए. कमेंसलिटी है, इंटरकास्ट लोग साथ में बैठ के खाना नहीं खाएंगे. फिर सेक्शनल डिवीजन ऑफ द सेगमेंटल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी है. फिर अनटचेबिलिटी है. वॉट एवर द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाई जी एस घुरे. जी एस घुरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा. ठीक है. ओके. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट, देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ना. वर्ना जैसे है कि यूनिवर्सल है. आप कश्मीर में जाइए, कन्याकुमारी में जाइए, गुजरात में जाइए, वेस्ट बंगाल में जाइए, राइट. इट इज़ यूनिवर्सल. कास्ट का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है. कास्ट अलग है. जैसे डोमिनेंट कास्ट आता है तो उसके हायरार्की बदल जाती है. लेकिन कश्मीर में भी ब्राह्मण्स आर एट द टॉप, कन्याकुमारी में भी ब्राह्मण्स एट द टॉप, गुजरात में भी ब्राह्मण्स एट द टॉप. आई एम टॉकिंग अबाउट द. अभी इसमें क्या है, देयर इज अनदर 10 मार्कर कैन बी आस्क हियर, इज बुक व्यू एंड फील्ड व्यू. ठीक है. ये बुक व्यू जो है, जो इनको बोलते हैं इंडोलॉजिस्ट, इनको बोलते हैं इंडोलॉजिस्ट. द पीपल who have talked about Indian social system by just reading the books such as Vedas and all these books, they have created some perception of the Indian social system. And the persons like Dumont, persons such as Max Muller, right, these are Indologists. ठीक है. तो इन्होंने एक व्यू बनाया that is called as book view. तो book view is mostly related to Varna. Now Varna cannot be seen in Indian society as such. Indian society is now mostly, caste is a feature of Indian society. Varna था लेकिन अभी नहीं है. ठीक है. तो कास्ट हम बोलते हैं कि गुप्ताज जो था 6th-7th सेंचुरी में तब से आया है, राइट. सो तब से आया है ऐसा बोलते हैं. ठीक है. ओके. तो जैसे वरना में मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सैलिटी है, स्ट्रैटिफिकेशन है. क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी है. ठीक है. सो लिमिटेड चॉइसेस है, ऑक्यूपेशन की लिमिटेड चॉइस है कि भाई ब्राह्मण यही काम करेगा, क्षत्रिय यही करेगा, ये वही करेगा. ठीक है. ओके. एंड जो फील्ड व्यू है, फील्ड व्यू बोलता है जो स्टडी है फील्ड में क्या है, अभी क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, अभी इंडिया में क्या चल रहा है. नाउ फील्ड व्यू जो किया है, दैट इज द पर्सन सच एज एम एन श्रीनिवास. एम एन श्रीनिवास एंड पीपल लाइक हिम डिड द फील्ड व्यू. ठीक है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुक व्यू एंड फील्ड व्यू. ठीक है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड एम एन श्रीनिवास व्यू, एम एन श्रीनिवास व्यू ऑन कास्ट एंड वर्ना. ये आप ज़रूर 1-2 पेजेस रेडी कर लेना. 2 पेजेस यू रेडी ऑन दिस. आपका अगर इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड फ्रॉम सोशोलॉजी, उससे बात कर लेना एंड यू प्रिपेयर दिस. ठीक है. देन देर इज थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम. अगेन दिस क्वेश्चन हैज़ बीन मल्टीपल आस्क्ड. जैसे देर इज डिवाइन ओरिजिन. डिवाइन ओरिजिन क्या बोलता है भाई, डिवाइन ओरिजिन क्या बोलता है कि ब्राह्मण जो है ये जो एक आदि पुरुष था उसके माथे से जन्मा, क्षत्रिय जो है उसके हैंड से जन्मा, वैश्य जो है उसके लेग्स से हुआ, एंड शूद्र जो है फीट से हुआ. दिस इज डिवाइन ओरिजिन सिस्टम. देन देयर इज अ पॉलिटिकल थियरी गिवन बाय जी एस घुरे. जी एस घुरे के पॉलिटिकल सिस्टम के भाई ये दिस वाज अ टूल डेवलप बाय ब्राह्मण्स की कास्ट सिस्टम लाया. देन Mana theory which was given by Hutton. Then there is occupational theory given by Nesfield. So there are multiple theories of origin of the caste system, but every theory which is given, it has some criticisms. ठीक है. तो ये आप इग्नू से कवर कर लीजिएगा.
सी ये वाला टॉपिक 3.2 कवर करने में आपकी जान निकल जाएगी, आई एम टेलिंग यू। 3.2 इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, you need to give sufficient time to it, so that you need to make proper notes of this topic, ठीक है। then there is a dominant caste, the concept which is given by M.N. Srinivas by studying the मैसूर, मतलब तब कर्नाटका में स्टडी किया M.N. Srinivas ने रामपुरा विलेज में, and he gave the concept of dominant caste. so dominant caste again it's very good explained in Nadim Hasnain में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो डोमिनेंट कास्ट में यू नीड टू व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स है, डोमिनेंट कास्ट कैसे बनता है, कि वन फैक्टर इज पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जो एजुकेशन ज़्यादा लेता है, दे ओन द रिसोर्सेज देयर, दे ओन द लैंड, राइट, दे ओन द लैंड, दे आर एजुकेटेड एंड ऑल दैट, राइट। तो ये है। देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट कास्ट के फीचर्स क्या है, डोमिनेंट कास्ट एज अ कॉन्सेप्ट कैसे आया इंडिया में, राइट, इट इज़ ऑल एक्सप्लेन्ड देयर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है तो व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ डोमिनेंट कास्ट टुडे, डोमिनेंट कास्ट एज अ फीचर, इज इट देयर टुडे। देखो पिछले कुछ 2-3 सालों में जितने भी कास्ट बेस्ड ये हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, पाटीदार्स, मराठास, जाट्स, ऑल दीज आर डोमिनेंट कास्ट। द पॉलिटिकल विनिंग अगेन डोमिनेंट कास्ट, आप साउथ इंडिया में देख लीजिए, कम्मास, रेड्डीज, राव, जो भी है डोमिनेंट कास्ट। सो डोमिनेंट कास्ट का व्हाट इज द रेलेवेंस टुडे ऑफ दिस डोमिनेंट कास्ट, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन डोमिनेंट कास्ट, यू नीड टू कवर दिस फ्रॉम नदीम हसनैन, एंड इसका रेलेवेंस वाला पार्ट थोड़ा इंटरनेट पे आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट सच एज कास्ट मोबिलिटी। कास्ट मोबिलिटी क्या है कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट में हैं तो ये कास्ट आप चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन वेदर क्या आप चेंज कर सकते थे क्या। तो देयर वर 2 थिंग्स एसोसिएटेड विथ इट, कि अपवर्ड कास्ट मोबिलिटी एंड डाउनवर्ड कास्ट मोबिलिटी। अभी अपवर्ड कास्ट मोबिलिटी जैसे बोलते हैं कि वॉर, आप वॉर में पार्टिसिपेट किए, सो यू आर सम लोअर कास्ट बॉर्न, बट देन बाय पार्टिसिपेटिंग इन वॉर यू बिकेम क्षत्रिय, और बाय सर्विंग द रूलर्स, आप मतलब ऐसा बोलते हैं कि मेनी पीपल हु आर सर्विंग द मुगल्स एंड देन लेटर ब्रिटिशर्स दे बिकेम वैश्य। देन मैनी चेंज देयर कास्ट बाय पॉपुलेशन सेंसस, मैनी चेंज देयर कास्ट बाय बहुत अलग अलग रीज़न से नाम चेंज कर लिया, समथिंग लाइक दैट। सांस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सांस्कृताइजेशन से मैनी पीपल हैव चेंज देयर कास्ट सच एज नुनियाज एंड ऑल दैट, राइट। देन कास्ट मोबिलिटी में देर इज वन इंटरेस्टिंग फीचर हैज़ बीन फाउंड आउट कि बहुत लोग डाउनवर्ड भी जाना चाहते हैं, सच एज ट्राइब कास्ट क्वांटिनम है, या डी सांस्कृताइजेशन है रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो फीचर, दिस अगेन कास्ट मोबिलिटी कैन बी आस्क फॉर 10 मार्क्स, ओके। इसमें M.N. श्रीनिवास का डेफिनेशन कर लीजिए। कास्ट मोबिलिटी विल गेट वेरी गुड इन अगेन इग्नू एंड एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड में अच्छा मिलेगा, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ द कास्ट सिस्टम, अभी ये जो है ये वाला टॉपिक हमेशा डिबेटेड रहा है कि फ्यूचर क्या होगा, इसका आंसर कैसे होना चाहिए। एक्चुअली फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम पे देर वॉज वन लेक्चर डिलीवर्ड बाय M.N. श्रीनिवास का एक लेक्चर था कि इज कास्ट डाइंग। अभी जितना भी आप अगर इग्नू में भी कंटेंट ढूंढेंगे तो फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम पे ये वाला दिखाएगा कि देर आर मल्टीपल अप्रोचेस वेदर कास्ट कैन बी अबॉलिश्ड, विच वॉज गिवन बाय अम्बेडकर, whether caste should be reinstated in the form of varna given by Gandhiji, there should be amalgamation of the caste system given by some other thinker such as D.N. Majumdar and all that, and replace the caste by class, that was one another thing given by, है ना। तो future of caste system में these are the 4 views which you can cover from IGNOU, but I would say you write M.N. Srinivas's views also। is caste, अभी इस पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, is caste dying in India, तो वहाँ पे अगर इस कास्ट डाइंग अगर पूछ रहे हैं, यू नीड टू राइट डाउन द फीचर्स बिहाइंड डिटेरियोरेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, वेदर कास्ट सिस्टम हैज़ डिटेरियोरेटेड इन सम वे, बट यू नीड टू अगेन सी कि हैज़ इट डिटेरियोरेटेड और हैज़ इट स्ट्रेंथन मोर
जैसे मैंने बोला कि डोमिनेंट कास्ट इट इज़ गिविंग मोर एंड मोर কি বলবো আমি মোর অ্যান্ড মোর স্ট্রেংথেনিং টু দ্য কাস্ট সিস্টেম দেন ভোট ব্যাংক পলিটিক্স রাইট then again it is strengthening caste system then many caste organization matrimonial sites देखिए like Dr. Ambedkar said if you want to destroy the caste system the major solution is intercaste marriages. Now all these matrimonial sites you can always see the caste based वहाँ पे biodatas आपको मिलेंगे right. So we have found out solution for everything. Actually you need to write down these points. ये वाले points आप लिखना आंसर में, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. See I gave two papers, मतलब 2 time attempt. In the first attempt I had 161 marks in paper 2. In the second attempt I had 156 marks. Second attempt I was topper in paper 2 I think in CSE 2019. ठीक है. So I link the topics, you will get very good marks. ठीक है. Then there is a Jajmani system. Again I would say you read IGNOU and Nadeem Hasnain. अभी जजमानी सिस्टम में कुछ सालों पहले एक क्वेश्चन आया था कि वेदर जजमानी सिस्टम इज इगैलिटेरियन और एक्सप्लॉयटेटिव. तो यू नीड टू फाइंड आउट हाउ इज इट इगैलिटेरियन कैसे है. तो इगैलिटेरियन बोलते हैं बिकॉज वहाँ पे द पर्सन हु इज जजमान ही टेक्स केयर ऑफ द कामीन राइट. सो जजमान इज इम्पोर्टेंट. देन जजमान टेक्स केयर, फिर जजमान शादी विधि में हेल्प कर देता है, उसको ऑक्यूपेशन देता है, जनरेशन टू जनरेशन चलता आता है राइट. बट एट द सेम टाइम एक्सप्लॉयटेटिव, जजमान एक्सप्लॉइट्स कामीन, उसको पैसे कम देता है, ऑल दोज थिंग्स राइट. Then how Jajmani system is deteriorating? What are the reasons for the deterioration of the Jajmani system? Then what is the impact of the market economy? ये आपको मिलेगा नदीम हसनैन में मिलेगा. What is the impact of the market economy on Jajmani system? All these questions can be asked and many of these questions have been asked before. Okay. The next topic is tribe caste continuum. Tribe caste continuum is given by F.G. Bailey. Okay, so F.G. Bailey gave this concept of tribe caste continuum when he was studying what is the name of that village? Srirampet or something. I forgot the name of the village. Srirampur or Srirampet, right? So यहाँ पे क्या बोलता है कि tribe and caste they start living together and the feature of these became the same. The people of the tribal they adopt some features of the caste and people of the caste they adopt some feature of the tribe so that there is a continuum and you cannot distinguish whether it is a tribe or whether it is a caste. You will amazed to find very good content related to this in e-Pathshala also. e-Pathshala also. ठीक है, e-Pathshala में बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम का. सो ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम की यू नीड टू स्टडी व्हाट आर द रीजंस, कॉजेस क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेस. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया है. एंड व्हाट दे विल टू यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम को लिंक करेंगे टू संस्कृताइजेशन एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चन. दे विल लिंक हाउ द ग्लोबलाइजेशन इज लीडिंग ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम. How the globalization is leading tribe caste continuum. I'll tell you an example. The moment globalization starts, it starts the industrialization. Industrialization होगा तो इंडस्ट्री के लिए लैंड चाहिए, लैंड एक्विजिशन होगा तो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होगा द मोमेंट ट्राइब according to Max Weber, the moment any tribal leaves the land, that tribal person adopts the feature of the caste system. See how globalization is linked to the tribe caste continuum, and this is how you need to study this. देखो ये सारे questions again repeat होने वाले हैं, so you need to be prepared, you need to be properly prepared to address this question, to answer these questions.
ठीक है. देन दिस एडिशनल टॉपिक्स विच यू शुड कवर, इस पे एक अच्छे से 2-2 पेज नोट्स बना लेना. चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम क्या हुए हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम. स्ट्रक्चर क्या चेंज हो रहा है, डोमिनेंट कास्ट एंड ऑल दोज थिंग्स. फंक्शन क्या चेंज हो रहा है, मैरिज के लिए कैसे चेंज हो रहा है, कमेंसलिटी कैसे चेंज हो रही है, ऑल दोज थिंग्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. एक्चुअली दिस स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यू वाज गिवन बाय एम.एन. श्रीनिवास. ठीक है, तो एम.एन. श्रीनिवास has given this view. So what is the structural and functional changes in the caste system, ये वाला चीज़, ये वाला बना लेना 2 पेजेस. देन ऑल्सो 2-2 पेजेस बना लेना व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ द अम्बेडकर. जब आप अम्बेडकर कर लेंगे तो आप ये भी कर लेना कास्ट एनिलेशन. सो व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर ऑन कास्ट एनिलेशन. कास्ट एनिलेशन कैसे करेंगे, ठीक है. एंड व्हाट आर द इन जनरल व्यूज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, ये भी लिख लेना, 2 पेज कर लेना. व्हाट आर द व्यूज ऑफ गांधी जीज ऑन कास्ट सिस्टम. देन व्हाट आर द व्यूज ऑफ लुई ड्यूमॉन्ट. लुई ड्यूमॉन्ट गिव द प्यूरिटी पोल्यूशन थ्योरी. प्यूरिटी पोल्यूशन थ्योरी, अभी मैं क्या बोला, लुई ड्यूमॉन्ट इज बुक व्यू. लुई ड्यूमॉन्ट बुक व्यू देता है. एंड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यू वाज गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय एम.एन. श्रीनिवास. सो देर वॉज वन क्वेश्चन इन 2018, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, दैट स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम इज प्रिडोमिनेंट एज कंपेयर टू प्यूरिटी पोल्यूशन व्यू. मतलब वो बोल रहे कि भाई स्ट्रक्चरल फंक्शनल है सिस्टम में एज कंपेयर टू द प्यूरिटी पोल्यूशन व्यू गिवन बाय द लुई ड्यूमॉन्ट. लुई ड्यूमॉन्ट बोलता है कि वही वरना वाला सिस्टम बोलता है. वो बोलता है कि अनटचेबिलिटी रहेगी तभी ओनली कास्ट सिस्टम रहेगा एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर एक्सप्लेन्ड बाय लुई ड्यूमॉन्ट. तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको आएगा. लुई ड्यूमॉन्ट के व्यूज़ जो है, अगेन दिस इज गिवन वेरी गुड इन नदीम हसनैन. नदीम हसनैन में दिया है व्यूज़ ऑफ अंबेडकर एंड गांधी जी यू कैन डू थ्रू इग्नू बुक्स, इग्नू. देन कास्ट एंड पॉलिटिक्स, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा अगेन वोट बैंक पॉलिटिक्स. वोट बैंक पॉलिटिक्स, दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय एम.एन. श्रीनिवास हिमसेल्फ. This term was coined by M.N. Srinivas himself. And caste and politics में the major contribution is of Rajni Kothari. Rajni Kothari. Okay. Also वो जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखता है वो सुहास पर्शिकर या someone like that, right? वो उसका भी अच्छा देख लेना, सुहास पर्शिकर कुछ नाम है उसका. You will find very good case studies. ठीक है. देन दलित पॉलिटिक्स भी एक बार देख लेना. दलित पॉलिटिक्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. दलित पॉलिटिक्स भी देख लेना. ओके. देन कमिंग टू 3.3, देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड अ सैक्रेड कॉम्प्लेक्स. सैक्रेड कॉम्प्लेक्स एंड नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, बोथ द कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय एल.पी. विद्यार्थी. ठीक है. So sacred complex he gave in Gaya and nature man spirit complex he gave in the Maler tribe. ठीक है. तो sacred complex again ये complex है. sacred geography itself can be a question of 10 marks. ये खुद एक 10 marks के लिए आ सकता है. content you will get in नदीम हसनैन. दोनों से रिलेटेड कंटेंट आपको, सोर्सेज नदीम हसनैन, ई पाठशाला एंड इग्नू. ठीक है. दोनों का कंटेंट ये तीनों जगह से अच्छा मिलेगा. ठीक है. कि सैक्रेड कॉम्प्लेक्स क्या है, सैक्रेड स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, सैक्रेड परफॉर्मेंसेस क्या होते हैं, सैक्रेड ज्योग्राफी क्या होती है. देन इससे रिलेटेड देख लेना सैक्रेड कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन्ड बाय झा एंड सरस्वती. इन्होंने अलग से स्टडी करी है, राइट. देन नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, नाउ यू कैन लिंक द नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टू 9.7 इन पेपर 1 कल्चरल इकोलॉजी.
देखो ये सारी चीज़ें है ना, मैं आपको पढ़ाऊँगा बाद में, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आनी चाहिए. देन व्हाट डू यू मीन बाय नेचर स्पिरिट कॉम्प्लेक्स? वो गोसाइयाँ क्या रहता है? देन व्हाट आर द स्पिरिट्स? स्पिरिट्स क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेचर? व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैन? एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पिरिट? ठीक है, ये कर लेना. देन इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन द इंडियन सोसाइटी, ये बहुत सिंपल टॉपिक है. ये आप टोटल आप एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड से कर सकते हैं. कि बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म का सोसाइटी पे क्या रोल हुआ, कल्चर पे क्या रोल हुआ, आर्किटेक्चर पे क्या रोल हुआ, बुक्स पे क्या रोल हुआ, पॉलिटिक्स पे क्या रोल हुआ, इन जनरल इकोनॉमी पे क्या रोल हुआ. ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू राइट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. बस इस्लाम में ये सूफी वाला पोर्शन भी कवर कर लेना, इस पर एक 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. हाँ, 2018 में आया था जैनिज़्म पे. ठीक है. देन देयर इज़ अ फोर्थ टॉपिक विच इज रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी, एमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया. ये हुआ था ब्रिटिशर्स की टाइम में. जैसे एलपी विद्या ये एक्सप्लेन किया है कि एलपी विद्यार्थी ने एक्सप्लेन किया है ये, तो उसके क्या फेजेस है वगैरह ये देख लेना. ये क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क के लिए. ये शायद दिया है एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड में. Then the contribution of the 18th, 19th and early 20th century scholar administration. अभी इसमें एक सब क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स इन इंडिया. जैसे ब्रिटिश हो गया आपका, ये है ई बी टाइलर को तो ये नहीं है, लेकिन वेरियर एल्विन. ओके. देन विच आर द, जैसे एफ जी बेली, आई थिंक ही इज अमेरिकन. सो व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन इंडिया. देन कंट्रीब्यूशन ऑफ द 18th, 19th, 20th सेंचुरी में कैसे हुआ, बोलिए. ये मिशनरीज आए. सो इनिशियली मिशनरीज वर गैदरिंग द डेटा, देन द administrator they themselves started gathering the data. All these things you write down. And then the contribution of the Indian anthropologists to the tribal and caste case studies. इसमें आप स्ट्रक्चर ये है, अगर आता है कि लेट से एन के बोस का कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, तो एन के बोस का लिखना है कि भाई एन के बोस ये है, एन के बोस बिलोंग्स टू दिस स्कूल. जैसे एल पी विद्यार्थी बिलोंग्स टू रॉबर्ट रेडफील्ड जो था, रॉबर्ट रेडफील्ड का जो स्कूल था उनके स्कूल से बिलोंग करता है. फिर इसका जो है, इसका आप बता दीजिए कि इनके बोस का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए. कंट्रीब्यूशन बता दीजिए कि इसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है फॉर कास्ट, क्या कंट्रीब्यूशन किया है फॉर ट्राइबल स्टडीज़. ओके. फिर इसने कोई बुक्स लिखे होंगे, बुक्स क्या लिखे हैं. फिर और क्या काम किया इसने एंथ्रोपोलॉजी को, हाउ ही हेल्प टू ग्रो एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया. ओके. सो बेसिकली यू शुड डू एलपी विद्यार्थी, एससी दुबे और वो एससी दुबे, एलपी विद्यार्थी, एमएन श्रीनिवास. ठीक है. फिर उसके बाद ये हाइमेंडॉर्फ का बहुत कॉन्सेंट्रेट, ये हाइमेंडॉर्फ, वेरियर एल्विन, उसके बाद एन के बोस, उसके बाद इरावती कर्वे. ओके. एससी रॉय. ओके. तो ऐसे 10-15 जो हमारे मेजर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिसका आप हर टाइम नाम पढ़ रहे हैं, ऑल दोज पीपल इसका यही वाले स्ट्रक्चर में बनाना है कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन से स्कूल को बिलोंग करता है, क्या बुक्स है, क्या ये किया है वगैरह. ऑल दोज थिंग्स यू शुड राइट डाउन. ओके. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड टॉपिक नंबर
234, टॉपिक नंबर 234, जो मैं ये टॉपिक नंबर 4 बोल रहा हूँ, दिस यू विल गेट ऑन गूगल ओनली। ये टॉपिक नंबर 4 एक गूगल पे डॉक्यूमेंट है, उससे मिल जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट है गूगल पे, उससे मिल जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक 234 मेजर सोर्स इज योर नदीम हसनैन, इग्नू, and then for structuring you can refer to anthropology simplified, ठीक है। I think this is all about these topic number 2 3 4 and this is how we have finished part number